Hello everyone, welcome to YouTube channel of Genius Public Inter College. So in the continuation of the previous session, in this session I'm going to start with the next topic, that is petroleum. Petroleum is nothing but it is a fossil fuels. In the last session we have learned about coal. Petroleum is a liquid fuel. अभी कोल कैसा था आपका? कोल वॉज अ सॉलिड फ्यूल. कोल कैसा फ्यूल है? सॉलिड है. बट पेट्रोलियम इज अ लिक्विड फ्यूल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल. पेट्रोलियम को हम लोग क्रूड ऑयल भी बोलते हैं. क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल, रॉ ऑयल. इट इज थिक, विस्कस, black liquid with unpleasant smell found usually in pools along the rocks deep beneath the earth's crust. Now these are the physical properties of the petroleum. पेट्रोलियम कैसा होता है? थिक होता है, विस्कस है, ब्लैक लिक्विड है. इसकी स्मेल कैसी होती है? अनप्लीजेंट होती है. और ये मिलता कहाँ पे है हमें? डीप बीनीथ दी अर्थ क्रस्ट. अर्थ के क्रस्ट के अंदर, अर्थ के अंदर हमें 500 मीटर टू 5000 मीटर डीप डाउन दी अर्थ हमें ये मिलता है. द वर्ड पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल. पेट्रोलियम का मतलब रॉक ऑयल भी होता है. अब इसे रॉक ऑयल क्यों बोलते हैं? इसे रॉक ऑयल अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे. रॉक ऑयल इसलिए बोलते हैं बिकॉज पेट्रोलियम इज ट्रैप बिटवीन दी रॉक्स. पेट्रोलियम क्या होता है? रॉक्स के बीच में ट्रैप रहता है. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर देखो रॉक्स है और रॉक्स के बीच में क्या है आपका? देखो ये पेट्रोलियम यहाँ पर ट्रैप्ड है, इसलिए इसे हम लोग रॉक ऑयल पे बोलते हैं. द वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड पेट्रा मीनिंग रॉक एंड लैटिन वर्ड ओलियम मीन्स ऑयल. यहाँ पर पेट्रोलियम किससे आया हुआ है? एक ग्रीक वर्ड पेट्रा और लैटिन वर्ड ओलियम से आया हुआ है. पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल. सिंस इट इज़ फाउंड trapped in between rocks, here the reason is given, since it is trapped in between the rocks, that's why it is called as rock oil. Just do remember the names. It is called as crude oil. Crude oil means raw oil, that is your, in Hindi you can call it as कच्चा तेल जिसे बोलते हो. And it is also called as rock oil. Rock oil क्यों बोलते हैं? Because it is trapped between the rocks. It is one of the most valuable substance obtained from under the earth's crust and is considered as black gold. Again a very important term, that is your black gold. It is a very important substance, very precious substance. ये ऐसा क्यों है? बहुत important, बहुत precious क्यों है? If you will see, if I'll ask you about the importance of petrol, diesel, kerosene in our everyday life, these products are very important for us and all these are the products of petroleum. आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब क्या है? पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट्स हैं और हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये. That's why due to its importance it is also called as black gold. इसे हम लोग black gold भी कहते हैं. It is a mixture of compounds of carbon and hydrogen. Petroleum is the mixture of compounds of carbon and hydrogen, the hydrocarbons. Petroleum is a natural exhaustible resource. It is a natural resource and it is exhaustible. It means it is limited in nature. Once it is consumed, we won't get any more petroleum products. It is insoluble in water as it is oil. It is a oily liquid. पेट्रोलियम क्या है आपका? एक oily liquid है. That's why this is insoluble in water. इसलिए water में क्या है? soluble नहीं है. क्या है ये? घुलता नहीं है. It floats on water being less dense than water. Now if I will mix water and the petroleum, then petroleum being less dense, petroleum की density क्या होती है? water के comparison कम होती है. That's why it will float on the surface of the water. ये क्या करेगा? water की surface पे क्या करेगा? float करेगा. Next is formation of petroleum. How petroleum is being formed? petroleum की formation कैसे होती है?
एज इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल, ये फॉसिल फ्यूल हमने अभी पढ़ा, तो इसकी फॉर्मेशन भी कैसे होती है, डेड एंड डिके ऑर्गेनिजम्स ही होती है. बट हियर इज़ अ बिट डिफरेंस. दिस इज़ फॉर्म विद द रिमेन्स ऑफ सी क्रिएचर्स. जो आपके क्या है, जो सीज में जो एनिमल्स रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स जो रहते हैं, उनके उनके क्या है, उनके डेड ऑर्गेनिजम्स, उनकी डेड बॉडीज से क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन होती है. इट इज़ बिलीव दैट पेट्रोलियम is decayed remains of tiny animals and plants. It is the decayed remains of tiny animals and plants that were formed in shallow seas millions of years ago. ये उन एनिमल्स या प्लांट्स का क्या होता है, डेड रिमेन्स या डिके रिमेन्स होता है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो कहाँ रहते थे, सीज में रहते थे. टाइनी ऑर्गेनिजम्स डाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी. अभी क्या होता है, जो सी क्रिएचर्स होते हैं, जो सी एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं, टाइम टू टाइम जब वो डाई करते हैं तो वो कहाँ होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, कहाँ पर, सी की सरफेस पर आकर के क्या होते हैं, सेटल डाउन होते हैं. ठीक है. और व्हेन टाइम टू टाइम दीज सी क्रिएचर्स डाई, दे सेटल डाउन एट द सरफेस ऑफ दिस सी. सीज के सरफेस पर, अभी सीज के सरफेस पर है तो सरफेस पर ही तो रहेंगे नहीं, यहाँ पर क्या होगा, सैंड की लेयर. ठीक है. धीरे धीरे क्या होगी, इसके ऊपर सैंड की लेयर की फॉर्मेशन होती जाएगी. तो ये क्या हो, सैंड की लेयर की फॉर्मेशन होगी तो कहाँ चले जाएंगे, अर्थ के नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे नीचे और जाते चले जाएंगे, डीप डाउन जाते चले जाएंगे. एंड बाद में क्या होता है, इनको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की कंडीशन में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनकी फॉर्मेशन किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ये पेट्रोलियम के करते हैं. Tiny organisms died from time to time and sank to the bottom of the sea. These dead organisms got covered under the layer of clay and silt. अभी dead organisms जो क्या हैं, कवर हो जाते हैं किसके, clay और silt के layers के नीचे. Clay and silt brought down by rivers from time to time. The remains of these organisms got trapped under the layers of the silt in an atmosphere devoid of air. अब क्या होता है, धीरे धीरे जाके कहाँ ट्रैप हो जाते हैं, अर्थ सरफेस के नीचे, जहाँ पे क्या है, एयर की एब्सेंस होती है, वहाँ पे क्या है, एयर प्रेजेंट नहीं होता. दे गॉट डिकम्पोज इनटू सिंपल हाइड्रोकार्बन्स. इनकी डिकम्पोजिशन होती है किसमें, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में फॉर्मिंग. और ये हाइड्रोकार्बन्स क्या करते हैं, फॉर्मिंग पेट्रोलियम बाय एनारोबिक बैक्टीरिया एक्टिंग अपॉन देम इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड ड्यू टू हीट एंड प्रेशर फ्रॉम अबव. अब क्या है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में और एनारोबिक बैक्टीरिया की डिकम्पोजिशन से फॉर्मेशन होती है किसकी, बाद में पेट्रोलियम की. तो बेसिकली पेट्रोलियम किससे फॉर्म हुआ, सी डेड सी क्रिएचर्स, जो सी एनिमल सी क्रिएचर्स होते हैं, जो टाइमली क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं. तो डाई होने के बाद क्या होता है, वो जाके सी की सरफेस पे यहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं. आफ्टर दैट इनके ऊपर लेयर आ जाती है सैंड की, सिल्ट की या क्ले की, और ये लेयर्स धीरे 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 क्या है, लेयर्स इनकी ऐसे कवर अप हो जाती है और ये कहाँ चले जाते हैं, डीप डाउन चले जाते हैं. और वहीं पर इनके जो भी कंडीशंस हैं वो मिलने के बाद क्या होती है, फॉर्मेशन होता है पेट्रोलियम का. Gradually the oil from the layers of shale, slate-like layers of rocks formed by the decomposition of layers of silt, squeezed out and flowed to form a pool of crude oil on impervious rocks. अभी क्या होता है, जो ये आपका ऑयल बनता है, ये ऑयल जाके कहाँ ट्रैप हो जाता है, रॉक्स के बीच में जाकर के ट्रैप हो जाता है, और उसको ऑयल वेल बोलते हैं. जहाँ पर ये ट्रैप होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑयल वेल. टू फॉर्म अ पूल ऑफ क्रूड ऑयल ऑन impervious rocks. Let's see a video clip. Like coal, petroleum and natural gas reserves were also formed around 300 million years ago. When ancient plants and animals died and sank to the bottom of the sea. Sediments of sand and rock brought in by the ocean covered these organic remains. Gradually,
a layer of sedimentary rock was formed. Absence of air, high pressure, and high temperature converted the organic matter present in this layer into petroleum and natural gas. Being lighter than water, both petroleum and oil traveled upwards until they reached the layer of impermeable rock, where they accumulated to form petroleum and natural gas fields. नेक्स्ट इज द अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम. अब आपका पेट्रोलियम कहाँ कहाँ अकर करता है एंड हाउ इज इट बीइंग एक्सट्रैक्टेड, इसको बाहर कैसे निकाला जाता है. पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर नॉट फाउंड एट ऑल प्लेसेस एंड आर फाउंड ओनली इन सर्टेन एरियाज ऑफ अर्थ. अब अर्थ पर आपको यू वॉन्ट गेट द पेट्रोलियम एट ईच एंड एवरी प्लेस. ऐसा नहीं है कि आप जहाँ जाओगे वहाँ आपको पेट्रोलियम उस प्लेस पे मिल जाएगा. It is found only at particular places on the earth's surface. It is abundantly available from oil wells in Middle East. अभी ज़्यादा amount में कहाँ पर present है? In the Middle East countries like Kuwait, Saudi Arabia, Iraq, Iran and other Gulf countries. America itself is a big oil producing country, though it imports oil from Middle East countries. अभी अमेरिका क्या है, ये भी मिडल ईस्ट कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करता है. इंपोर्ट करता मतलब उससे ख़रीदता है, बट फिर भी अभी क्या है, ये बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री अमेरिका खुद भी है. इन इंडिया, अब अपने इंडिया में देखें कहाँ कहाँ पेट्रोलियम मिलता है. इन इंडिया असम, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोदावरी एंड कृष्णा रिवर बेसिन्स हैव ऑयल एंड गैस यील्डिंग वेल्स. अपने इंडिया में कहाँ मिलता है? असम, गुजरात, ऑफशोर ऑफ मुंबई दैट इज़ महाराष्ट्र, गोदावरी, कृष्णा रिवर बेसिन्स पे हमें ऑयल और गैस के वेल्स मिल जाते हैं. फॉर एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम फ्रॉम आइडेंटिफाइड प्लेसेस, होल्स आर डग डीप इनटू द रॉक्स एंड अंडर द सॉइल विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स कॉल्ड ड्रिलिंग रिग्स. अभी क्या होता है, पहले क्या होता है, अभी ये कहाँ पर है? सी सरफेस पे. सी सरफेस पे क्या है, जो डेड क्रिएचर्स हैं आपके, उन्हीं से इनका फॉर्मेशन हुआ है, मतलब वहीं पे आपका पेट्रोलियम ऑयल वेल्स हैं. तो पहले पता किया जाता है कि आपके पेट्रोलियम है कहाँ पे, पेट्रोलियम रिजर्व्स कहाँ पर हैं. तो पता चलने के बाद कि ये ट्रैक करने के बाद कहाँ पर पेट्रोलियम अवेलेबल है, ऑयल वेल्स कहाँ पर अवेलेबल है, ड्रिलिंग रिग की हेल्प से, इस मशीन की हेल्प से क्या किया जाता है, यहाँ पर होल करके, क्योंकि रॉक्स के बीच में ट्रैप है तो यहाँ पर होल करके, इस रॉक तक होल करके इस पेट्रोलियम तक पहुँचा जाता है. ड्रिलिंग रिग is a huge structure with a heavy rotating shaft with sharp bits at the end of the shaft. The bit cuts into the rock material and may reach a reservoir of oil and gas. अभी क्या करता है आपका ड्रिलिंग रिग, करता क्या है, रॉक को कट करते हुए कहाँ तक, ऑयल वेल तक या फिर ऑयल वेल तक या फिर गैस वेल तक पहुँच जाता है. द क्रूड ऑयल हैज़ टू बी रिफाइंड इन ऑयल रिफाइनरी एज दिस ऑयल पेट्रोलियम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कॉम्पोनेंट्स. इसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स रहते हैं, तो इसको क्या किया जाता है, ऑयल रिफाइनरी में पहले रिफाइन किया था. रिफाइन करना मतलब सेपरेटिंग द कॉम्पोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करना. डिफरेंट फॉर सेपरेटिंग द डिफरेंट कंपाउंड्स फ्रॉम द क्रूड ऑयल मिक्सचर. इनका पेट्रोलियम का हम रिफाइनिंग कैसे करते हैं, कोल में आपने पढ़ा था, बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करके हम लोग इसकी रिफाइनिंग करते हैं. लेट्स स्विच टू अ वीडियो. Petroleum is extracted by drilling wells underground or under ocean beds. Natural gas is usually found along with petroleum. Petroleum is a mixture of various components such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil,
paraffin wax, kerosene, and bitumen. These components are separated from petroleum by a process called refining that is carried on in a petroleum or oil refinery. Each of these components has great commercial value. Hence, petroleum is known as black gold. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अभी पेट्रोल को रिफाइन कैसे किया जाता है, कंपोनेंट्स सेपरेट कैसे किए जाते हैं. पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन सच एज gasoline. It is a mixture of highly vaporizing petrol and naphtha, kerosene, diesel, lubricating oil, asphalt, that is your bitumen. बिटुमेन का यूज़ हमने कोल के टाइम पे कहाँ पढ़ा था, रोड सरफेसिंग पे देखा था कि हमने क्या होता है, बिटुमेन का यूज़ किया जाता है. Paraffin wax and others. These are the components which are there in the petroleum. Crude oil is refined in oil refinery by the process called fractional distillation. Oil refinery में हम crude oil को refine करते हैं by which process? By the process of fractional distillation. Fractional distillation is the process of refining oil. Components that are the fractions of crude oil have different boiling points and their vapors cool into liquid at different temperatures. Now actually what happens, all these components which are there in the petroleum have different boiling point. If suppose the boiling point of petrol is for a moment, just suppose that, let us take an example. If the boiling point of petrol is 20 degrees Celsius, boiling point of kerosene is 40 degrees Celsius, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डीजल इज 60 डिग्री सेल्सियस. दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. अगर ऐसा कुछ है तो क्या होगा, इसको जब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले पेट्रोल का कम है तो ये क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा. सबसे पहले ये वेपराइज होगा. आफ्टर दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ केरोसिन वी हैव एज्यूम्ड एज 40 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट मोमेंट पे, नेक्स्ट टाइम पे क्या आएगा, केरोसिन आएगा. ये पूरा क्या होगा, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट का पूरा वेपराइज हो जाएगा, देन धीरे धीरे क्या होगा, केरोसिन वेपराइज करना स्टार्ट करेगा. एंड आफ्टर दैट क्या होगा, फिर डीजल आपका जिसका 60 डिग्री सेल्सियस है, धीरे धीरे क्या होगा, ये वेपराइज करना स्टार्ट करेगा. तो अभी क्या है, जो कंपोनेंट्स आपके पेट्रोलियम में प्रेजेंट हैं, ऑल दीज कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डिफरेंट कूलिंग पॉइंट्स. डिफरेंट कूलिंग पॉइंट्स मतलब जो कूल होते हैं, ठंडा होते हैं, उसके भी टेम्परेचर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं. Hence, fractional distillation is the process in which steam is passed through heated vaporizing crude and its fractions are steamed to cool and separate out at different temperatures. तो इस प्रोसेस में होता क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में हीट को हम लोग क्या करते हैं, स्टीम इज पास्ड थ्रू हीटेड वेपराइजिंग क्रूड. आपका जो हीटेड वेपराइजिंग क्रूड होता है उसमें से क्या करते हैं हम लोग, स्टीम को पास करते हैं और इसके फ्रैक्शंस जो है, इट्स फ्रैक्शंस आर स्टीम टू कूल एंड सेपरेट आउट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. और उनके जो आपके जो स्टीम है उनको क्या किया जाता है, उनको कूल किया जाता है और वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कूल डाउन होते हैं और उनको स्टोर किया जाता है. The temperature in the fractionating tower remains high up to 300 degrees Celsius in the lower part and low nearly 40 डिग्री सेल्सियस इन दी अपर पार्ट. तो सबसे ज़्यादा आपका टेम्परेचर हाई आपके इस फ्रैक्शन में नीट डाउन में होता है, दैट इज़ नियर अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस. और सबसे कम टेम्परेचर कहाँ होता है, ऑब्वियस है कि सबसे कम टेम्परेचर ऊपर होगा, तभी ये निकल करके कहाँ बाहर निकलता जाएगा, एक एक करके ऐसे बाहर निकलते चले जाएंगे ये. ठीक है, इसका टेम्परेचर सबसे कम है तो क्या होगा, पहले ही वेपराइज हो जाएगा, फिर ये वेपराइज होगा, फिर ये वेपराइज होगा. तो जिसका जितना यहाँ से क्या कर रहे हैं, देखो हम स्टीम दे रहे हैं इसको.
ठीक है। ये हीटेड क्रूड ऑयल इसके अंदर भरा हुआ है पूरा, आपका ये पेट्रोलियम पूरा इसके अंदर भरा है। यहाँ से स्टीम पास कर रहे हैं और यहाँ से स्टीम क्या हो रही है, यहाँ पे ये 1 बाय 1 करके यहाँ से वेपराइज हो रहा है। नेक्स्ट लेट्स सी द फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम ऑब्टेन ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब कौन कौन से पेट्रोलियम से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर। इस प्रोसेस के बाद हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। गैसोलीन, नाउ व्हाट इज गैसोलीन? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाईली वोलाटाइल गैसेस लाइक, इट्स अ मिक्सचर ऑफ वोलाटाइल गैसेस लाइक प्रोपेन, ब्यूटेन, एविएशन पेट्रोल एंड ऑर्डिनरी पेट्रोल। एविएशन पेट्रोल क्या होता है? दैट इज़ यूज्ड इन एयरप्लेन्स एंड ऑल। जो एयरप्लेन्स वगैरह में पेट्रोल यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज एविएशन पेट्रोल। गैसोलीन इज़ द ब्रिटिश नेम फॉर पेट्रोल। गैसोलीन है क्या? पेट्रोल का ही ब्रिटिश नेम है, ठीक है। पेट्रोल का ही ब्रिटिश नेम क्या है? गैसोलीन है। पेट्रोलियम गैस, what is petroleum gas? Is liquefied under pressure and is called liquefied petroleum gas। पेट्रोलियम गैस क्या है? इसको अंडर प्रेशर क्या किया जाता है? लिक्विफाई किया जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG is filled in strong steel cylinders and is used as a fuel। LPG is highly volatile। LPG देखो आपके घरों में जो LPG होती है क्या होती है? अगर थोड़ा सा भी उसको खोल दोगे तो पूरा क्या होता है? बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है? हाईली वोलाटाइल होता है। एंड इट टर्न्स इनटू गैस एज सुन एज प्रेशर इज रिलीज्ड ऑन टर्निंग दी नॉब। और ये क्या होता है? आपकी गैस में कन्वर्ट हो जाता है जब क्या करते हो आप इसमें प्रेशर रिलीज करके क्या करते हो? नॉब को अपने ऑन, सिलेंडर से जब नॉब को ऑन ऑफ करते हैं ना, तो जब ऑन करते हो तो क्या होता है? गैस में कन्वर्ट होकर तुरंत बाहर आता है, जैसे उसको थोड़ी सी स्पेस मिलती है। LPG इज 95% ब्यूटेन। LPG में क्या रहता है? 95% ब्यूटेन रहता है, दैट इज C4H10। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ब्यूटेन। एंड पार्शियली प्रोपेन विदाउट एनी स्मेल। अब LPG में रहता क्या? LPG कॉम्बिनेशन किसका है? 95% इसके अंदर ब्यूटेन रहता है और बाकी इसके अंदर क्या है? प्रोपेन रहता है। बट ब्यूटेन एंड प्रोपेन बोथ डू नॉट हैव एनी स्मेल। इन दोनों में कोई स्मेल नहीं होती। तो आप बोलोगे घर पे तो जब आपकी LPG जो है थोड़ी सी भी गैस लीक होती है सिलेंडर से तो आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो वो कैसे पता चलता है कि आपको स्मेल क्यों आती है? इट इज़ एक्चुअली ऑफ कंपोज्ड ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। देन फ्रॉम वेयर डू यू गेट दैट स्मेल? आपको स्मेल आती कहाँ से है? Hence a smelling gas amyl mercaptan, just do remember this name, amyl mercaptan is added to it so that leakage of gas from a cylinder can be easily detected। इसलिए क्या क्या जाता है? हाउस होल्ड पर्पस में यूज़ करते हैं हम लोग LPG का। That's why to detect its smell if there is any leakage, a smelling gas that is amyl mercaptan is added in the LPG। आपका LPG क्या है? It is composed of butane and propane, and butane and propane both are odorless। इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। That's why a smelling gas that is amyl mercaptan is added in the LPG। इसलिए LPG में हम लोग इस गैस को इंक्लूड करते हैं so that if there is any kind of leakage we can detect the leakage and उससे गेट ओवर हो सके। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज नैप्थलीन। आपका अगला प्रोडक्ट क्या है? नैप्थलीन। नैप्थलीन बॉल्स आपने घर में देखी भी होगी, आप रखते हो इंसेक्ट्स को भगाने के लिए। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ब्यूटेन। नैप्थलीन क्या है आपका? इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ब्यूटेन। इट फॉर्म्स वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट बिलो 80 डिग्री सेल्सियस। इससे नैप्थलीन से क्या बनता है आपका? सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। टेम्परेचर कितना है इसका? बिलो 80 डिग्री सेल्सियस। नैप्थलीन वेपराइजेस इन ओपन एयर एट रूम टेम्परेचर। आपने नैप्थलीन बॉल्स देखी होंगी, अपने घर पे रखी रहती है। अगर उसको ओपन एयर में रख दो, वाइट कलर की बॉल्स जो बॉक्स वगैरह में आप डालते हो इंसेक्ट्स को दूर करने के लिए, अपने जो भी क्लोथ्स वगैरह उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए, तो उनको अगर ओपन एयर में हम रख देते हैं तो क्या होता है? धीरे 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 क्या होते हैं? वेपराइज हो जाते हैं। नैप्थलीन वेपराइजेस इन ओपन एयर एट रूम टेम्परेचर। Naphthalene balls are used to keep woolen and cupboards free of moths। मॉथ से, कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपने वुलन क्लोथ्स को या फिर कबर्ड्स में क्या करते हैं? नैप्थलीन बॉल्स को हम लोग डालते हैं।
Naphthalene is used to make dyes and plastic. It is also used to make dyes and plastics. इसका यूज़ और किस में किया जाता है? डाइज और प्लास्टिक्स को बनाने में भी किया जाता है. नेक्स्ट इज लाइट ऑयल. इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल. लाइट ऑयल क्या होता है आपका? हाईली इन्फ्लेमेबल होता है. It is a good solvent for fats used in dry cleaning. Light oil is also used in dry cleaning. All these are the products of petroleum. ये सब petroleum के क्या है? Products है. When we refine petroleum, then we get all these products. It includes xylo, that is xylenes, used in scientific laboratories for dehydration of plants and animal material under study. ये क्या है? इसमें ज़ाइलो भी होता है. तो ये किस में यूज़ होता है? साइंटिफिक लैबोरेटरीज में भी यूज़ किया जाता है. किस लिए? फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मटीरियल्स. नेक्स्ट इज़ केरोसिन. वी ऑल नो व्हाट इज़ केरोसिन. हम रेगुलर देखते हैं, इसको यूज़ भी करते हैं. इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन स्टोव्स. इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर लाइटनिंग लैंटर्न्स. लैंटर्न्स को भी लाइट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. इट गिव्स आउट स्मोक ऑन बर्निंग, हेंस इट इज़ पॉल्यूटेंट. ये क्या है? जलने पे इसमें से क्या निकलता है? स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है. इसलिए ये क्या है? एक तरह का पॉल्यूटेंट है. एक पॉल्यूशन क्रिएट करता है. नेक्स्ट इज डीजल ऑयल. वी ऑल नो व्हाट इज डीजल ऑयल. इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल टू रन हैवी ट्रक्स एंड इंजन. डीजल ऑयल इज़ यूज्ड टू रन vehicles. Next is heavy oil or lubricating oil. Heavy oil is also called as lubricating oil. Is used as a lubricants to lubricate engines. देखते होगे आप लोग जब बाइक वगैरह की सर्विसिंग कराते हो तो उसमें लुब्रिकेंट ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं. मोटर्स एंड मशीन्स टू रन इट स्मूथली. उसको स्मूथली चलाने के लिए, स्मूथली वर्क करने के लिए, हैवी मशीन्स को स्मूथली रन करने के लिए वी मेक यूज़ ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स. नेक्स्ट इज अ पैराफिन वैक्स. इट इज़ रिफाइंड टू वैसलीन बीइंग यूज्ड एज एन ऑइंटमेंट. पैराफिन वैक्स का यूज़ किस में होता है? इट इज़ यूज्ड एज एन ऑइंटमेंट. ऑइंटमेंट क्रीम जब चोट वगैरह लग जाती है तो लगाते हो. एज मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन cosmetics. Raw paraffin is used for making wax candles and grease. And the use of raw paraffin is used for making candles and grease. Next is bitumen. Bitumen, it is a part of crude, is not evaporated by the steam and is left behind as black solid residue which is thick and sticky bitumen. बिटुमेन हमने कोल के टाइम पे भी पढ़ा था कि बिटुमेन का यूज़ हम लोग रोड सरफेसिंग पे आजकल करते हैं या फिर वाटर प्रूफ रूफ्स बनाने के लिए करते हैं. अ पार्ट ऑफ क्रूड इज़ नॉट इवेपोरेटेड. दिस इज़ नॉट बीइंग इवेपोरेटेड वाइल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ये क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के टाइम पे इवेपोरेट नहीं होता है. द स्टीम एंड इज़ लेफ्ट बिहाइंड एज अ ब्लैक सॉलिड रेजिड्यू विच इज़ थिक एंड स्टिकी बिटुमेन. और क्या कहता है? ये सरफेस पे, उसी सरफेस पे क्या होता है? ऊपर देख लो एक बार, यहाँ पर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट यहाँ पर लिखा हुआ है. ये आपका यहाँ पर क्या है? बिटुमेन इस सरफेस पे ही रह जाता है. ये क्या आता है? स्टीम इसकी नहीं बनती, इवेपोरेट ये नहीं होता है. ठीक है. सो ऑल दीज आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम दैट वी गेट आफ्टर रिफाइनिंग पेट्रोलियम. ये सारे क्या हैं? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं. गैसोलीन, दैट इज़ योर पेट्रोल इटसेल्फ. पेट्रोलियम गैस, naphthalene, लाइट ऑयल, kerosene, diesel oil, heavy oil, paraffin wax and bitumen. All these are the products of petroleum.